Hello everyone, this is Bhupendra Singh, your online lifestyle mentor. Today's my topic is how to start or open a CBSE school. Friends, this is a topic which is I am actually explaining in a steps, and this is not a topic which is actually that I have just heard and that's I research and I'm doing this video. I started a school. I started a school right from the basic. Then I followed the complete procedure of all the steps which I'm going to explain you. So it's my practical experience which I'm sharing with you. So I have a detailed knowledge, a detailed brief about this and what I have. That doesn't mean that I have it is a publicly also available, but we need to get it synchronized and to understand the concept very clearly. So let's move to the topic. That first topic is I'm briefing you the complete information in 9 steps. First step is you must have society, one trust, or company. Every state has its own bylaws, so you can get the trust, society, or company registered as per the state's requirement. For that, you have to follow a complete procedure. So first is getting your society, trust, or company framed or constituted. Second thing comes when you plan for any topic, we need a particular setups. So first setup, I feel that you should must have infrastructure setup knowledge. Now how I can explain in this part that first we have serially we understand the thing. First is our land. Now what is land all about? When you speak about land, then it means CBSE has given some criteria for land. First of all, the society owned land must be there. मीन्स जो जमीन है वो सोसाइटी के नाम से होनी चाहिए, उसकी रजिस्ट्री है, पट्टा है, जो भी आपके कागज है वो सोसाइटी के नाम से होना चाहिए. Second is the size of land. Size of land also depends upon the area and the location and the place you are opening the school. Definitely you must have researched all these things, but it starts from acres of land to 2 3 4 5 acres of land. हिल स्टेशन के अलग है, मेट्रोज के लिए अलग है, सिटीज के लिए अलग है और रूरल एरियाज के लिए अलग है. तो आप ये थोड़ा पता कर लें कि आपकी लैंड साइज रिक्वायरमेंट कहाँ से कहाँ तक आती है. देन if you are not having your land, then you can get a lease land particular also, but the lease deed should be of minimum 30 years with registered setups. When you have to pay some lease deed or something government charges, and you get the lease deed of 30 years minimum. ये बहुत जरूरी है. And the fourth thing I would like to add on in the same is that type of the nature of the land. What type of land you are using? Either it's agriculture, institutional, patta, or some like that. So you have to clear that also very much. Now I'm coming to the second point, that is your building. Now CBSE has a set norms for room size. It is 25 by 25 also. Even in the meters, it is also explained in some parts that one student require 1 square meter of space. तो अगर आप जमीन कोई लेते हैं, रूम कोई लेते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो 1 square meter के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट बच्चे से शुरू होती है और वो आपको साइज के साथ ध्यान रखना है. Then definitely you require in building you require one more important thing, that you should have complete labs, composite lab, science lab. When I'm talking about science lab, that is separate 3 labs which you require when you are promoting your school from 11th standard to particular after getting the 12th affiliation or 9th affiliation. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 9-10 की affiliation के बाद में आपको 12-11 की affiliation की process मिलती है, तब आपको वो 3 lab जो है particularly subject wise आपको चाहिए वो मिलती है. Computer lab is required, infirmary is required. Suppose if you are running the school with a little bit bigger campus or bigger size, then you require sports facility. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में भी बेसिक में आपको कम से कम मिनिमम 2-3 इंडोर गेम्स और 2 आउटडोर गेम्स देने देने. लेकिन आपके अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो देन यू रिक्वायर्ड हॉस्टल्स आल्सो. सो फॉर दैट इज अ सेपरेट गाइडलाइन इज गिवन बाय सीबीएसई, वो आपको फॉलो करनी है. तो यहाँ जो सेटअप आया है मैंने ब्रीफ किया, लैंड, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स एंड हॉस्टल फैसिलिटी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पर्टिकुलरली. नाउ द थर्ड पॉइंट, सेकंड का इसी का है एफिलिएशन सेटअप. एफिलिएशन सेटअप मींस व्हाट? Basically you require admin setup. Admin setup, it is a basically school bylaws. What is your school all about? Curriculum design, then staff appointment. ये आपका एक हो गया एडमिन सेटअप के अंदर. अगर हम इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे वो है आपका एकेडमिक सेटअप. एकेडमिक सेटअप इज अ वेरी सिंपल वन. योर क्लासेस, your even classes include the student whatever the strength you have, then the results of last 2 or 3 years, then whatever other academic activities or co-curricular activities you are doing in your school, and physical evidences of all these things. Suppose you are conducting some seminar, you should have certificate for that. Suppose you are conducted some purposefully some act, you should have some evidential proof, photographs, videos and some certificate. So ये आपका academic setup चाहिए हमारे को. अगर हम स्कूल CBSE affiliation जाते हैं, 2 setups की मैंने यहाँ पे बात करी है. Now I am coming to the third point. Third point is
your state board affiliation. Now, whenever you start any CBSE school, you must know you require a state board affiliation. So, in some states, the affiliation is given from 5th standard. In some states, it is given direct till 8th standard. So, for CBSE affiliation, you require the state board affiliation of minimum 8th standard. 8 तक का affiliation आपके पास होना चाहिए अगर आप CBSE स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं. देन सेकंड, यू हैव टू अपग्रेड ऑल्सो. सपोज आपने 5th लिया हुआ है तो 8 तक आप अपग्रेड करके उसको रेडी रखिए, बिकॉज आपका जो नेक्स्ट स्टेज होगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, वो सबसे पहले आपका स्टेट लेवल से स्टार्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं आप देखिएगा, NOC from the state board. Suppose you have taken the affiliation and you are planning for 9th standard. CBSE की affiliation याद रखिएगा 9th से मिलती है. तो अगर आप 9th से affiliation चाह रहे हैं तो you must be running 8th standard. 8th क्लास में आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस में आप NOC के लिए अप्लाई करेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट देती है. उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जनवरी से लेके मार्च के बीच में लोकल स्टेट टू स्टेट आपको वेरीफाई कर लें अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डीओ ऑफिस से. जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में अप्लाई किया जाता है. इंस्पेक्शन यूजुअली हो जाता है अप्रैल और मई के मंथ में, और आपका जो एनओसी का लेटर है वो यूजुअली रिलीज हो जाता है आपका जून में. सीबीएसई ने स्ट्रक्चरल चेंज किया है अभी कि एफिलिएशन फाइल जनवरी से लेकर जून तक लगना शुरू हो गई है. कभी कभी ये 31 मार्च की भी लास्ट डेट दे देते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए. एनओसी लेटर जब भी आप ले रहे हैं वो आपका टाइमली आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपकी अप्लाइंग फॉर सीबीएसई की जो प्रोसेस है ऑनलाइन की वो शुरू होगी. वो बहुत जरूरी है. आगे चलते हैं. इसके बाद में एनओसी आपकी स्कूल स्टेट बोर्ड से आती है. देन हाउ यू अप्लाई. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जैसे आपका होता है उसके ऊपर मैं यहाँ आ रहा हूँ. डॉक्यूमेंटेशन में मैं क्लियर लेके चलता हूँ, छोटी छोटी चीजें बड़ा ध्यान से रहिए. पहली बात तो आपकी जो सोसाइटी ऑफ ट्रस्ट है उसका स्टेटस लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए. उसके इलेक्शन टाइम पे हो रखे हैं, उनकी प्रोसेस सारी कंप्लीट है, तो वो आपको ध्यान रखना है वो आपका रेडी हो. दूसरा, एफिलिएशन आपकी जो है वो आपने 8th में ले ली और उसकी आपकी एफिलिएशन के साथ में उसकी एनओसी मस्ट होनी चाहिए. फिर आपके लैंड टाइटल्स. लैंड टाइटल्स के बारे में आपको क्लियर करूँ, एक तो आपको मैंने ऊपर भी किया था, सोसाइटी ओन है तो उसका आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसके सारे एविडेंसेस रखिए. आपकी साइज जो रिक्वायरमेंट है आपकी उसका आप थोड़ा ध्यान रखिए कि वो आपके पैरामीटर्स को मीट आउट कर रही है कि नहीं कर रही है. देन आपकी अगर लैंड है तो लीज पे है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे कंप्लीट है या नहीं है, बिकॉज वो अगर आपके प्रॉपर नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे. साथ ही साथ आपकी लैंड का स्टेटस क्या है. कभी कभी क्या होता है स्टेटस की डेफिनेशन बहुत क्लियर रखिए, एग्रीकल्चर लैंड है, इंस्टीट्यूशनल लैंड है, या किस पर्पज से लैंड यूज हो रही है. अगर उसका लैंड यूज प्रॉपर नहीं है तो आपकी फाइल अटक सकती है, आपका काम रुक जाएगा. इसलिए आप अपनी लैंड यूज को या लैंड स्टेटस को भी थोड़ा ध्यान रखिए. यहाँ लैंड में एक कैटेगरी और होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके कैंपस कितनी जगह है. एक ही जगह है, दो जगह है, तीन जगह है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में अगर वो दो जगह तीन जगह है तो उनको एक जगह कंसोलिडेट करके लिखवाना है कि मेरा ये 1 नंबर कैंपस, 2 नंबर कैंपस, 3 नंबर कैंपस इस लोकेशन पे, ये सारा कंसोलिडेटेड में एक है, एक जगह है. ये डॉक्यूमेंट्स भी नगर निगम में आपका जो पंचायत है आपकी जहाँ जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा. नाउ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टीचर्स. टीचर्स के लिए भी मैं इतना से कहूंगा कि वॉट एवर डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स यू आर मेंटेनिंग दैट शुड फॉलो अ प्रॉपर सिस्टम. अपॉइंटमेंट लेटर से लेकर के और आपकी ज्वाइनिंग से लेके और उसका पूरा फाइलिंग जो है वो सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए. वो पूरे चैनलाइज होने चाहिए, साइन किए हुए होने चाहिए. आपका जब इंस्पेक्शन का डेट आएगा उसमें वो बारीक से बारीक चीज़ों को चेक करते हैं. इसलिए अपने टीचर्स के अपॉइंटमेंट में कोई लापरवाही नहीं रखें. वो आपको बहुत ध्यान से कागज पूरे करने हैं और उसी दिन फिजिकल उसी हिसाब से आपका टीचर अवेलेबल होना चाहिए. देन कमिंग फॉर द बिल्डिंग फिटनेस एंड सर्टिफिकेट्स. देखिए आपका लोकल नगर निगम है या आप बड़े स्टेट में मेट्रो का कोई सेटअप है, जो भी गवर्नमेंट बॉडी है वो आपको बिल्डिंग फिटनेस देती है आपका जो सेटअप बना हुआ है उसके हिसाब से. तो वो बिल्डिंग फिटनेस बहुत जरूरी है. उसके साथ में बहुत सारे और सर्टिफिकेट भी चाहिए होते हैं, वो भी आप लेके रखिए, बिकॉज ये सारे सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन के दिन और अप्लाई करने से पहले बहुत सी बार चाहिए होते हैं. फायर एनओसी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल. फायर एनओसी जरूर लीजिए. फायर एनओसी के बगैर आपकी एफिलिएशन या आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. इसलिए फायर एनओसी को लेकर के बहुत सीरियस रहिए. डे वन से आपकी फायर एनओसी प्लान आपकी बिल्डिंग बनती है उसी टाइम पे आप अपने प्रोविजन इस तरह से रखिए कि फायर एनओसी का सर्टिफिकेट हाथ के हाथ मिल जाए आपको. इसके गाइडलाइंस हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, हर सिटी के, हर स्टेट के, वो आप शुरू में पढ़ लीजिए. देखिए स्कूल खोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा रूल्स रेगुलेशन पहले दिन पढ़िए. आप स्टार्ट अगर स्कूल मान लीजिए अगले साल करना चाहते हो तो इस साल से पूरी प्रोसेस पढ़ना शुरू कर दीजिए. बाय लॉज बहुत अच्छे से क्लियर है. फिर भी आपको कंफ्यूजन है, मैं मेरा ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ नीचे, उसमें आप मेरे से राय ले सकते हैं किस टाइटल में क्या किया जा सकता है. तीसरा, यहाँ से हेल्थ सैनिटेशन का भी बहुत एक बड़ा इशू आता है. आपको वाटर के लिए भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा,
हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट बॉडी से ये भी ध्यान आपको लेना पड़ेगा कि यहाँ इस तरह से इंस्पेक्शन होते हैं, इस तरह की मेडिकेशन वगैरह सारी टाइम टू टाइम होती है। तो आपको ये भी है। एक बहुत जो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है कि हम टीचर की सैलरी पे कर रहे हैं, दैट शुड बी पेड बाय द बैंक एंड दैट शुड बी गिवन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। उसमें आपका ईएसआई कटना चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, सोशल वेलफेयर का काम वो होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चरल वे में बैंक से आपकी फाइनेंशियल्स मैच होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना, ये आपके इंस्पेक्शन के दिन आएगा ही आएगा, इसको अवॉइड नहीं करें। अगला पॉइंट, आरटीई एफिलिएशन। देखिए आपने सारा काम कर लिया, लेकिन अगर आपकी स्कूल आरटी में एफिलेटेड नहीं है तो तय मान के चलिए आपका 100% इंस्पेक्शन जो है वो रुक जाएगा। सो इसलिए ध्यान रखिए आरटी की एफिलेशन का अप्लाई साथ साथ कर दें। आरटी एफिलेशन बहुत जरूरी है, आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। नाउ आई एम कमिंग very important part, second stage of this PPT, that is how we are going for the affiliation. It's a very simple process. When you get NOC from the state government and the certificates from various departments, then you have to pay some registration fee. That registration fee also CBSE explain, it is given on the website, 25,000 से लेकर स्टार्ट होती है, और उसके साथ में आपका एक डिग्री लगता है, उसका भी एक रेशो है, वो आप थोड़ा पता करें क्योंकि फिगर्स अपडेटेड हैं, लेटेस्ट है, और आएंगे आप उसको चेक कर लें। उसके साथ में आपको जो डीडी है उसका एप्लीकेशन स्टेटस आप ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको एक कोड जनरेट होगा, उसी कोड और उसी नंबर से आप अपना स्टेटस हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग फॉर द सेवेंथ पार्ट। जैसे आप मान लीजिए सीबीएसई का आपका इंस्पेक्शन हो गया, आपका प्लानिंग हो गई, तो आपका होगा कैसे? तो उसके लिए सबसे सिंपल है, सबसे पहले तो सीबीएसई क्या करता है, लेटर ऑफ डेफिशिएंसीज इशू करता है इंस्पेक्शन कमेटी को। लेटर ऑफ डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपकी स्कूल में आपने जो भी कागज दिए वो कौन कौन से नहीं है, या आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट क्या नहीं है। ये बेसिक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं होता है, इसको आप बहुत लाइटली लें। लाइटली इन द सेंस कि इससे डरना नहीं, इसे फेस करना है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए टाइम दिया जाता है, और फिर इंस्पेक्शन कमेटी से आपका इंस्पेक्शन डेट फाइनल होती है। उसमें दो लोग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, लोकल प्राइवेट स्कूल्स के भी हो सकते हैं। उनसे आपको लेटर आएगा जिसमें बाकायदा बताया जाएगा कि वी आर अपॉइंटेड लाइक दिस एंड दिस फॉर योर इंस्पेक्शन, और आप फिजिकली या टेलीफोनिकली उनसे कंफर्म कर लीजिए, रिशेड्यूलिंग कर लीजिए। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। और फिर उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स का भी स्टेटस उनसे, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे क्या स्टेटस है आपके डॉक्यूमेंट्स का, आर दे रेडी। आप उसको, अगर आपके रेडी हैं तो आप बताइए, अगर आपके रेडी नहीं है तो आप एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में 5-7 दिन का मार्जिन होता है, क्योंकि उनको भी वापस रिपोर्ट टाइमली करना है, तो वो उनसे आप टाइम लीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी है तो देन यू कैन शेड्यूल एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम शेड्यूल ऑफ योर ऑब्जर्वर और योर इंस्पेक्टर। ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में आपकी जो इंस्पेक्शन प्रोसीजर है उसका आपको सेटअप क्लियर हो जाएगा। नाउ फाइनली व्हाट विल हैपन ऑन द इंस्पेक्शन, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें तैयार करके रखनी चाहिए। वेरी फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव ए ऑटोमेशन ऑफ इंस्पेक्शन टीम। कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसा होगा, ये थोड़ा सा आप जरूर बात करें, क्योंकि जो इंस्पेक्शन टीम आ रही है वो जयपुर मतलब पर्टिकुलर आपके स्टेट से किसी भी जगह से बाहर से आ रही है, तो आपको प्रॉब्लम में आ सकते हैं, उनको स्टे का इन सब की समस्या आएगी। पूछिए, जानिए, कर्सी के तौर पे आप पता करिए कि क्या अरेंजमेंट्स है। सेकेंड, आप उसके साथ में ये और जरूर देखिए कि आप उनको जो पर्टिकुलर आपके काम है उनको आपने कैसे अलोकेट किया है। यू हैव प्रिंसिपल, यू हैव वाइस प्रिंसिपल, सबको काम अलॉट कर दीजिए। सिंगल मैन से आप नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको काम को अलोकेट कर देना है। और आप ध्यान रखिए, ये कोई इसमें कोई कमी नहीं है। मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स आपका टाइम पे नहीं मिलता, कोई इशू नहीं है, आपका टाइम होता है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। देन कीपिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी। देखिए इंस्पेक्शन के दिन आपको 6 से 7 घंटे मिलने वाले हैं। उस 6-7 घंटे में आपका इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस दिन ही डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। अपने टेबल पे, अपने रूम में, अपने इंस्पेक्शन कमीशन जहाँ बैठेगा आपका, उस जगह पर सारे डॉक्यूमेंट्स सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर लिए। स्टाफ का अलग, बिल्डिंग का अलग, और डिपार्टमेंट अलग, बैंक फाइनेंशियल अलग, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स का हेडिंग है उनको प्रॉपर चैनलाइज करके टैग करके रखिए। व्हेन दे आस्क एनी डॉक्यूमेंट यू हैव टू सबमिट प्रॉम्प्टली। आप उसका ज़्यादा देर इंतजार ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है पॉसिबल कि इंस्पेक्शन टीम आपके डॉक्यूमेंट के लिए आधे घंटे 1 घंटे वेट करेगी। सो कीप योर डॉक्यूमेंट्स सेफ एंड ईजी एंड रेडी अवेलेबल। नाउ आई एम कमिंग द फाइनल डे। इंस्पेक्शन डे कैसे होगा, या इंस्पेक्शन कैसे कराया जाता है, या होता कैसे? सिंपल, यू हैव टू फर्स्ट वेलकम इन द कैंपस। जो आपका सेटअप है, कुछ स्कूल्स में एनसीसी भी होती है, कुछ स्कूल्स में अपने स्काउट एंड गाइड भी हैं, बैंड्स भी हैं, सब कुछ अच्छा है। आप उसको यूज करिए, एक अच्छा डेकोरम बनाइए और एक शानदार से वेलकम रखिए। फिर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपने ऑफिस में, चैम्बर में, जहाँ आपका प्लेस है वहाँ है। इसके बीच में वो प्रेयर अटेंड करते हैं। उससे पहले एक आपको वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर आप अरेंज रखिए, जो इन सबकी वीडियो फोटो बनती है सीबीएसई में जाती है।
कॉपीज बनती है उसकी, इसलिए वो रेडी होना चाहिए। आप उसको बहुत ध्यान रखिए, पहले से एडवांस बुक करके रखिए। और इंस्पेक्शन के गेट से लेके फाइनल डे तक वो वीडियोग्राफी करता है बंदा, फोटोज क्लिक करता है और वो सीबीएसई में जाती है ना। फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का जब होगा उस टाइम आपको अपने प्रिंसिपल और पूरी टीम को साथ में लेकर के उसको एग्जीक्यूट कराना है। ध्यान रखिएगा इस टीम का मतलब यह एडमिन ब्लॉक है। रनिंग में स्कूल आपका चलता रहना चाहिए, बच्चे क्लासेस में होने चाहिए, टीचर जैसे टाइम टेबल आपका चल रहा है वो सब रेगुलर चलते रहने चाहिए। देन द एंड पार्ट, कैंपस विजिट। कैंपस विजिट स्टार्ट होगी आपकी क्लासेस से, लाइब्रेरी से, कंप्यूटर लैब से, साइंस लैब से। कंपोजिट साइंस लैब आपको 9th-10th की एफिलिएशन में चाहिए होती है। बड़ी क्लास में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अलग लैब चाहिए, या जो भी स्ट्रीम्स आप लेंगे उनकी लैब्स आपको बता दी जाएंगी, वो आपको लेंगे। सो इस तरीके से वो आपकी पूरी स्कूल का विजिट करेंगे। क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, वेरिफिकेशन होता है, बुक्स वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसमें आप बहुत जेन्युइनली पीसफुली अपने प्रिंसिपल को अपॉइंट करो, ही और शी विल हैंडल ऑल दिस थिंग्स। सो ये मेरा एक आपको 9 स्टेप वेरिफिकेशन था, जिसको मैंने बताया कि सीबीएसई एफिलिएशन में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप स्कूल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अगर आप स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए पूरी प्रोसेस रिसर्च करके आइए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे बाय लॉज आ गए हैं, सोशल इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है। आपको बहुत सारे मापदंडों को ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में किसी के कहने पर या आपके माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मैं स्कूल खोल लूँ, एक अच्छा स्कूल खोलूँ, जी नहीं। पहले स्टडी करिए सारे रूल्स रेगुलेशन, उसके हिसाब से पूरा फ्रेम डिजाइन करिए। और ईमानदारी की बात यह है, इस पूरे काम में कम से कम 2 साल से 3 साल लगते हैं। सो अपना टाइम लीजिए, प्रॉपर चैनलाइज कीजिए और सब चीज़ों को समझिए। फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो मैंने मेरा लिंक दिया है, उसमें आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इट्स ऑल फॉर हेल्प, आपका हेल्प करने के लिए सब चीज़ें हैं। आपको पर्पसफुली किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं लेना है, आप कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पर्पस मेरे वीडियो का है आपकी मदद करना। थैंक यू वेरी मच।